दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लिए चलते हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स में। और इस वीडियो में हम चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पर चर्चा करने वाले हैं। और ये हमारा इस चैप्टर का वीडियोस का 7वां पार्ट है। तो आइए इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम एक्सरसाइज 9.5 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस सीखेंगे। सो डियर, एंजॉय द वीडियो। एंड हियर इज आइडेंटिटी फॉर यू, दैट इज a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square, and a minus b whole square equal to a square minus 2ab plus b square. And here is the third identity, a square minus b square equal to a plus b and a minus b. And after that, identity number 4 is x plus a and x plus b equal to x square plus अंडर ब्रैकेट ए बी एक्स प्लस ए बी। तो दोस्तों, आज हम ये चारों आइडेंटिटी को यूज करेंगे और हम लोग आज इस चारों आइडेंटिटी का एप्लीकेशन सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में अंत तक एंड एंजॉय। हियर इज क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट there are 5 parts in this question. 3x plus 7 whole square minus 84x equal to 3x minus 7 whole square मीन्स क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ प्रूव करना है कि दिस लेफ्ट हैंड साइड जस्ट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली द सेकेंड क्वेश्चन 9p minus 5q whole square plus 180pq equal to 9p plus 5q whole square means we will prove here this left hand side just equal to right hand side. Similarly in this question, left hand side equal to right hand side, this is required to prove. And part number 4 is also say that this left hand side just equal to the right hand side, and part number 5th is also same, prove that this is 0. Okay, so let us start the solution of this question. First of all, we will take the part number 2, and part number 2 is given here, that is 9p minus 5q whole square plus 180pq equal to 9p plus 5q, that is whole square. So what to do in this case? In this case we will take as this is left hand side and this one is right hand side. So we will take left hand side, and to prove that is left hand side we have to take, and here this left hand side is 9p minus 5q whole square plus 180pq. And here you know that an identity, this identity is as a plus b, a minus b whole square equal to a square minus 2ab plus b square. So you can say here is a equal to 9p and b equal to 5q. So you substitute this value in the right hand side. Here we will put the value a equal to 9p,
and b equal to 5q and also b equal to 5q in this identity. So what we get? We will get here just like that. A square means 9p whole square minus 2 into a means again 9p into b means 5q and plus b square means we will put here 5q whole square, and here we will put this value same to same here, that is 180 pq we will write with the positive sign. So we will write it same to same, that is plus 180 pq. So after simplifying this, we will get 9 square. Here is 9 square. 9p whole square means 9 square and p square. So we will get it as 9 means 81. P square means p square and minus there 2 into 5. 2 into 5 means 10 and 10 into 9 means 90. And PQ is also here. So you will write here 90 PQ and plus, now here you can see that square of 5 is 25 and square of q is q square. So you will write same things, that is 25 P and Q. Now you will write last term same to same, that is 180 PQ. Now dear, you can say that here is like term, this is 90 PQ and here is 180 PQ. So you will write this as 81 P square same to same and plus you will write these things in the bracket 180 PQ. After that these things, that is minus 90 PQ and close the bracket. After that you will write this term, that is plus 25 PQ. Oh sorry, P, it is not PQ, it is Q square. So dear, you say here in this place. So also here you will write, that is Q square. Okay. So dear, you can say that after simplifying, this is 81 P square and 180 PQ minus 90 PQ. You will get what? That is positive 90 PQ. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 180 से 90 माइनस करेंगे तो 180 से माइनस 90 करेंगे तो 90 ही बचेगा और ये पी क्यू आपको लिखना है प्लस 25 P and Q. So what you get after this? Yes, of course. So you will get it as, dear, that is you can write it as 81 means 9 and P, and then you can write this just into whole square and plus 2 and here is 9P. So you write 9P and also here 25 P square, not it is Q square, here is you will write Q square and you can write this term as 5Q whole square. So you write this second term in this place, that is 5Q. Now you can say that this is just a form, that is A square plus 2AB plus B square. So this is the formula of what? This is the formula of A plus B whole square, and here is the value of A is 9P and value of Q is, value of B is 5Q. So you will write 9P and here is the plus sign. You can say that this is plus sign and the value of A is 9P and value of B is 5Q. So you write here 9P plus 5Q
whole square, because you know that this is the identity and this is just equal to a plus b whole square. So a means this is you put here 9p and b means you put here 5q and whole square. So dear, this is the right hand side and you can say that this is just equal to right hand side, and you have to take here left hand side and you will get here right hand side. Therefore you can write, since left hand side equal to right hand side, hence finally you can say that hence proved. So this is the answer, this is the solution of this question. Okay dear, so in this question, in this all parts, you can apply the formula according to the question and you can solve these question one by one. Okay, now let us part number 5th. Here is part number 5th is given that a minus b, a plus b minus c, b plus c minus a, c plus a equal to 0. So how can you prove this question? Yes, it is very easy question. You can prove it as in the easiest way. So let us this part number 5th, and how can you solve this part number 5th in the easiest way. So dear, you can prove it very easy way, that is, you know that an identity, first of all we will write here the given question. Question is part number 5th, a minus b and a plus b, b minus, sorry, here is plus b minus c and b plus c, and again plus c minus a and c plus a equal to 0. Requirement to prove that 0. So what to do? Yes, you can do here. Let us, this is left hand side and this is right hand side. Right hand side only 0. So dear, left hand side and right hand side, you know an identity, that identity is a minus b and a plus b, मीन्स अगर किसी ब्रैकेट में एक बार माइनस है और एक बार प्लस है, यहाँ पे एक बार माइनस और एक बार प्लस है और सेमी नंबर है ए बी है, तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी क्या यूज करते हैं? हियर इज द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो यूज हियर इन ऑल दीज पार्ट, यहाँ सेकेंड टर्म थर्ड टर्म सब में आप यही आइडेंटिटी यूज करेंगे. तो इस आइडेंटिटी से क्या लिखा जा सकता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो यू कैन राइट हियर दिस पार्ट, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस this is the second term. So what you write? B minus C, B plus C. So you can write that b square minus c square, and here is the plus sign. So first of all you will put here plus sign and b square minus c square, and after that this is the third term. Third term is c minus a. You can say that it is c minus a and c plus a. So you can write in this place, that is c square minus a square. Now you can observe here very just way, that is here
A square is positive, A square is negative. B square is positive, B square is negative. C square is positive, C square is negative. So what you will get here? Nothing, that is 0. So this is the right hand side. Okay, when you will get this is right hand side, then you can say that here left hand side just equal to right hand side. Therefore left hand side equal to right hand side. So this is the solution of this question. Now dear, moving for next question, that is question number here is 6. Yes, using identity evaluate. Here is the question, using identities evaluate 71 whole square, 91 whole square, 998 whole square, 5.2, 78, 82 and so. So how can you solve these questions using identity? So here very so easy things. This question is so easy and you can solve this by easiest method. So here is given that let us first part is 71 whole square and this is written as 70 plus 1. You know that 70 plus 1 equal to what? 71 whole square. Now you know that an identity, that is a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square. So using this identity, question says that using identity, आपसे identity use करने को कहा. So what to do? Yes, you will place that is here a equal to, you know that here a equal to 70 and b equal to 1. So you put this value here in the place of a and b. Here a equal to 70 and b equal to 1. So what you will get? Yes, you can get here that is 70 whole square and plus 2 according to this identity into a means 70 into b means 1 plus b square means 1 square. So now this is 7 square, you know that 49 and 0 square means 00 plus here 2 7 ja 14 and 0 140 into 1 that is 140 again. So you can write that this is 140 and plus 1. Now dear, you will add it. So this is ones place digit, this is ones place digit, this is ones place digit, means 1 plus 0 plus 0. What you will get? You will get it as 1. And after that, this is the second place digit, this is the second place digit, and here is no second place digit. So 0 and 4 is 4. After that, because you can write this also as this is 4900 and this is 140 and this is 1. So what you will get? That's 1 and 4 and 9 and 1 0 and 4 or carry 1 5. So similarly you can add here, this is the 100 place digit. 100 place digit is 9 and 1. 9 and 1 means 10. 10 means you will write here 0 and carries 1. Now fourth place digit here is only 4 and carry 1. So this is 5. So dear, you can write directly this is the answer using identity. तो आपने identity use करके इसका value find कर लिया. Similarly you can write for this, that is 99 means you will write this 100 minus 1 whole square. And now you can use here identity a minus b whole square. Okay, so here which identity you will use?
here you will use the identity that is a minus b whole square. This identity you will used here. And after that, in this question you can write that 1000 minus 2, and this is whole square, so you write whole square. 1000 minus 2 means 998, and again you will use here identity that is a minus b whole square in this place. यहाँ पे आप ये ही आइडेंटिटी यूज करेंगे। और इसी तरह से आप इस फिफ्थ पार्ट में भी कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट और एट्थ पार्ट में पॉइंट दिया है, सो नो प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व दिस इज ऑल्सो। लेट अस आई वांट टू टेल यू दैट दिस पार्ट नंबर फिफ्थ। सो व्हाट इज द पार्ट नंबर फिफ्थ? पार्ट नंबर फिफ्थ इज गिवन दैट 5.2 whole square, and this is written as 5 plus 0.2 whole square. So again you will use here identity, since you know that is a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square. So now dear, you can see that here a equal to 5 and b equal to 0.2. So you will place this value, means you can write directly, no problem. Here a equal to 5 and b equal to 0.2. So you will place these value in here in this identity. आपको ये सभी वैल्यू a और ए बी और b इस जगह पे प्लेस कर देनी है. So what you will get after putting these value? Yes, you will get it as a square means 5 square and plus 2a means again 5 and b means 0.2 and plus b square means 0.2 whole square. So what you will get? 5 square means 25, okay, and this is 5 square means 25 and this is multiplication, 2 5 जा 10 and 10 को आप 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे. चलो एक बार लिख देते हैं कि क्या हो जाएगा. प्लस 10 इंटू 0.2 एंड प्लस 0.2 होल स्क्वायर. और मैंने आपको बताया था कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ डेसिमल का प्लेस एक ही है, एक ही डिजिट है, तो स्क्वायर करने पे डबल डिजिट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.04. इसे आप ऐसे लिख सकते हो 0.04 मीन्स 0.2 स्क्वायर मीन्स 0.04. ओके, so after that this you will get in the next step 25 and here you can say that 0.2 and 0.2 multiply by 10. यहाँ पे कितना जीरो है? एक जीरो है, तो ये डेसिमल 1 डिजिट रिप्लेस हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा? 02. 02 का मतलब 2 होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे +2 एंड आफ्टर दैट 0.04. ये सेम रहेगा. तो आफ्टर एडिंग दिस, बिकॉज दिस इज होल नंबर, दिस इज ऑल्सो होल नंबर, तो 25 + 2 27 हो जाएगा. और ये डेसिमल डिजिट है, तो ये पॉइंट लगा के सेम टू सेम ऐसे ही लिख देना है. तो क्या हो जाएगा? दिस इज 27.04. सो डियर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो यही इसका आंसर हो जाएगा फाइनली. तो आप लिख सकते हैं दिस इज द आंसर. Okay, now here is next question is given that this is 78 and 82. So what to do in this case? आपको ये दिया हुआ है, तो इस केस में आप क्या करेंगे? 78 इंटू 82 आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई, क्या कह रहा है? यूजिंग आइडेंटिटी इवेल्युएट, आइडेंटिटी का यूज करके ही सॉल्व करना है. सो हाउ कैन यू सॉल्व? यस, ऑफ कोर्स यू कैन सॉल्व इट. 78 and 82, you will write it as 78 and 82 in this case.
that is next part, that is last part. Here part number, this is 8. 78 into 82. So you can write this h in the easiest way, that is you will write it as what? 78 means this is 80 plus 80 minus 2, and in the place of 82 you will write 80 plus 2. So you can write this 82 as 80 plus 2 and 78 means 80 minus 2. But dear, you know that an identity a minus b and a plus b, what? सही बता रहे हैं, a माइनस बी और a प्लस बी होता है आपका a माइनस बी और a प्लस बी, आपने बिल्कुल सही बताया, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है? हियर इज द वैल्यू ऑफ a इज 80, a इक्वल टू 80 और b इक्वल टू कितना है? 2। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए इस वैल्यू यहाँ पे, तो आपको क्या मिल जाएगा? यस, यू विल गेट 80 होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। सो 80 स्क्वायर मीन्स, यू नो, 80 स्क्वायर मीन्स दिस इज 64। आप जानते हो क्या होता है? 64 और 8 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 00 और 2 का स्क्वायर करिए तो कितना आ जाएगा? 4। तो सिंपली आपको यहाँ 4 माइनस कर देना है। तो जब 4 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? जो कुछ मिलेगा वही तो आपका आंसर होगा। तो क्या मिलेगा? 0 में से 4 माइनस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से कैरी ले लीजिए आप, 0 में से ये है ना आपका 0, तो 0 में से आप यहाँ पे माइनस करेंगे, 0 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 में से 4 माइनस नहीं होगा। फिर क्या होगा? आप यहाँ पे क्या करेंगे कि 0 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका 10 में से 4 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9। तो 9 में से कुछ माइनस होगा नहीं, तो 9 ही लिखना है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ पे आपका रहेगा केवल 3, इस जगह 4 की जगह क्या 3, और 6 अपना ऐसे ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, इट इज़ 63 एंड 9 और 6, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है ना, बहुत सही। इसके बाद फिर आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर आपको हम बताने जा रहे हैं। तो ये आपने अभी देखा, इसमें आपको कोई तो डाउट नहीं। इसको क्या लिखेंगे? जैसे ये पार्ट नंबर था आपका, पार्ट नंबर लास्ट 8 पार्ट है, तो 8 पार्ट ये इसकी जगह पे आप क्या करेंगे? दैट इज 8.9 होल स्क्वायर। कैसे फाइंड करेंगे? यस, यू कैन राइट इट एज, आप इसको लिख लेंगे 8 प्लस 0.9 एंड होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी तो आप जानते ही होंगे। तो आप a प्लस बी, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और ये आपने अभी 7th पार्ट तो देखा ही था, तो मैंने यहाँ पे 8 पार्ट लिख दिया। ये 8 नहीं था, ये पार्ट आपका 7 था, तो हमने यहाँ पे 7 कर दिया। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट नंबर 7। ओके, this one is part number 7. So the part number 7 answer is 6396. Okay, 6396, this is the answer of this question. Okay, now dear, now moving for next question, that question number 7. And here is question number 7 is this, using this identity, आपको clear identity भी दे दी है, using a square minus b square equal to a plus b and a minus b, find this value। ये आपके इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं।
तो इन सब का वैल्यू आपको पता करना है, यही आइडेंटिटी यूज करनी है और कोई भी नहीं। तो कैसे करोगे? आसानी से कर सकते हो। कैसे करना है देखो, 51 होल स्क्वायर, ये पार्ट नंबर फर्स्ट है, 51 होल स्क्वायर माइनस 49 होल स्क्वायर। सो डियर, सिंस यू नो दैट identity is a square minus b square equal to a plus b and a minus v। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को बेहतर होगा कि आप यहाँ पे लिख लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, आइए इसको लिख लेते हैं। तो इसको आइडेंटिटी को यहाँ पे लिखते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी, या पहले ब्रैकेट में प्लस कर लो और दूसरे ब्रैकेट में माइनस कर दो। तो ये आइडेंटिटी होती है। ये आइडेंटिटी कब यूज करते हैं, जब यहाँ पे माइनस हो और दोनों पे स्क्वायर लगाओ। तो आप देखो वही चीज़ है, यहाँ पे स्क्वायर भी लगा है और माइनस भी है, तो ये आइडेंटिटी आप यूज करेंगे। और दिया भी है, बुक क्वेश्चन में भी दिया है कि इस आइडेंटिटी को यूज करना है, तो आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे, हेयर यू कैन से दैट हेयर a equal to 51 and b equal to what, b equal to is given that 49। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है आपको, तो क्या मिलेगा आपको, बहुत आसानी से मिल जाएगा। a मीन्स आपको यहाँ पुट करना है, a की जगह 51, b की जगह 49, a की जगह 51, b की जगह 49। तो क्या मिलेगा, यस यू विल गेट हियर 51 प्लस 49 और सेकेंड ब्रैकेट में 51 माइनस 49। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 51 प्लस 49 कितना होता है, 100। और यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो आप क्या समझते हैं, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, नहीं यहाँ पे साइन लगा है, इनटू का साइन है। इनटू 51 माइनस 49 तो 2 होता है। तो बताओ इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 200। और यही आपका हो जाएगा आंसर, ये आपका आंसर भी है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ डियर, फॉर नेक्स्ट पार्ट लेट अस another part. This is which part? Any one part you can take. All parts are very easy. So let us part number this one सेकेंड पार्ट ले लेते हैं, या फिर ये लास्ट पार्ट ले लेते हैं, कोई भी एक पार्ट ले सकते हैं। सेकेंड पार्ट ले लो। सेकेंड पार्ट हाउ कैन यू सॉल्व, वेरी इजीएस्ट वे यू कैन सॉल्व इट। सो डियर लेट अस, दिस इज द पार्ट नंबर सेकेंड। 1 point, part number second is 1.02 whole square and minus what next, 0.98 whole square, 0.98 whole square. So again you know same identity, उसी आइडेंटिटी को यूज करना है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी, या ब्रैकेट में प्लस पहले कर लो, दूसरे ब्रैकेट में क्या कर लो, माइनस, a माइनस बी। तो सिंपली है, एक ब्रैकेट में प्लस करना है नंबर्स को और एक ब्रैकेट में आपको माइनस करना है। तो चलो करो तो प्लस और माइनस। तो देखो ये हो जाएगा 1.02 प्लस 0.98 प्लस हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, माइनस 1.02 माइनस 0.98। तो देखिए जब आप इसे प्लस करोगे तो प्लस करने में क्या आने वाला है, प्लस करेंगे तो आप देखिए बहुत आसानी से कुछ आपको मिलने वाला है। 2 and 8 कितना होता है, 10। 10 का आप क्या लिखेंगे, 0। फिर 9 और कैरी 1 हो गया तो 10 फिर से आ गया, फिर 0। अब आप देखोगे यहाँ होल नंबर क्या है, होल नंबर 1 है, होल नंबर यहाँ क्या है, 0। तो 1 और 0, 1 और 0 तो 1 ही होता है, और कैरी 1 भी है तो 1 और 1 कितना हो जाएगा,
2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 और यहाँ डेसिमल लगा देंगे। तो डेसिमल के बाद 0 तो मीनिंगलेस होता है, चलो उसको बाद में बात करेंगे। और यहाँ पे इनटू, अब माइनस करना है, तो देखिए 2 में से 8 माइनस करोगे, यहाँ पे 2 में से 8 माइनस करोगे तो होगा, नहीं होगा, तो कैरी यहाँ से लेना पड़ेगा। आप कैरी यहाँ से लोगे तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ये कि इसको कैरी क्या देगा, तो ये तुरंत इससे उधार मांगेगा, तो इसने इसको कैरी दिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, 0 हो जाएगा। और इसने इसको कैरी दिया तो यहाँ 10 हो गया। अब 10 ने इसको कैरी दे दिया तो यहाँ 12 हो गया, या 9 रह गया, तो 12 में से 8 जाएगा। 12 में से आप 8 माइनस करोगे तो होगा 4। और इधर आपका कितना बच रहा है, 9। 9 में से 9 जाएगा तो 0 हो गया भैया, 0। और यहाँ तो होल नंबर के पास कुछ बचा ही नहीं है, तो आप लिखेंगे 0.4। 0.04 आपका हो गया। 0.4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, चूँकि ये तो मीनिंगलेस है, इस 0 का कोई मतलब नहीं है, चूँकि यहाँ डेसिमल लगा है। तो जब यहाँ पे ये मीनिंगलेस है तो आप बताओ कि 2 को 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा आपको 0.04 टू जा 8। बस इतना ही आंसर, यही आंसर हो गया आपका, और आपको और कुछ करना नहीं है। दिस इज़ योर आंसर। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आपका सिंपली कितना हो जाएगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ये आपका हो जाएगा 51 प्लस 49 और 51 माइनस 49, सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ भी हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा मालूम है, नहीं मालूम है, चलो मैं बता देता हूँ। 153 प्लस 147 और हो जाएगा 153 माइनस 147, सॉल्व कर लेंगे। और आप देखो कि ये इन दोनों में तो अभी हमने बता ही दिया। इस तरह आपने क्या कर लिया था, इधर आपने लिखा 101.02 प्लस 0.98, और दूसरा ब्रैकेट में आपने क्या कर लिया, दूसरा ब्रैकेट में हो जाएगा 1.02 माइनस 0.98, और इसे सॉल्व कर लेंगे। और इस वाले में क्या करना है आपको बताओ, इस वाले में आप लिखोगे 12.1 प्लस 7.9 और दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे 12.1 माइनस 7.9। अब सिंप्लीफाई कर लो तो सभी के आंसर फटाफट आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, जो इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो अब आप देखो कि इसको कैसे करना है। यहाँ भी इन्होंने क्लियर आपको दे दिया है क्या, कि आपको कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है। तो देखिए, यूजिंग x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, फाइंड दिस मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन आपको पता करना है। तो कैसे करोगे, बहुत आसानी से कर सकते हो। देखिए चलिए बताते हैं आपको। फर्स्ट पार्ट है 103 प्लस 104, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप आसानी से लिख सकते हो 100 प्लस 3 और 100 प्लस 4। तो देखिए 100 प्लस 3 क्या होता है, 103। 100 प्लस 4 कितना होता है, 104। तो इसे इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब आप देखोगे जब ऐसा लिखोगे तो ये नंबर हर किसी क्वेश्चन में सेम होगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, लेकिन ये डिफरेंट हो सकता है। तो देखो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ इसे आइडेंटिफाई करके लिखो। हियर x इक्वल टू 100, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4, और ये वैल्यू आप इस आइडेंटिटी में पुट करो। x की जगह 100 लिख दो, a की जगह 3 लिख दो, b की जगह 4 लिख दो, x की जगह 100 लिख दो, a की जगह 3 और 4। तो देखो क्या मिलने वाला है।
तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी लिख लो पहले। तो सिंस x प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो। एक्स स्क्वायर की जगह आप लिखोगे 100 का स्क्वायर, प्लस ए की जगह आप लिखोगे 3, बी की जगह लिखोगे 4 और एक्स की जगह फिर से आपको क्या लिखना है 100 और प्लस ए की जगह लिखोगे 3, बी की जगह 4 लिखोगे तो यहाँ इंटू लगाना पड़ेगा, नहीं तो 34 हो जाएगा और गलत हो जाएगा। जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये मिलने वाला है 100 का स्क्वायर मीन्स 100 पे 4 जीरो हो जाएंगे और 3 + 4 कितना होता है 7 × 100, तो 700 हो जाएगा और 3 4 जा 12 हो गया। अब आप इसे प्लस कर दो, सो सिंपली आसानी से प्लस कर दो ओरली। 10,000 में 700 प्लस करोगे तो 10,700 हो गया और उसमें भी 12 प्लस कर दो तो 12 और आ जाएगा 10,712 और ये आपका क्या होगा, यही तो आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो आसानी से इसे आपने सॉल्व कर लिया। ऐसे ही आपको ये पार्ट करना है पॉइंट वाला। तो पॉइंट वाले में करोगे क्या, आप इसको ऐसे लिखोगे, मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको लिखोगे पॉइंट वाले को 5 + 0.1 और इसको लिखोगे 5 + 0.2। तो अब आप समझ लो 0.2 जब आप इसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखना है। तो देखिए यहाँ जब 2 लिखोगे तो आप अपने आप बता पाओगे यहाँ a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू ये हो जाएगा x का वैल्यू और ये हो जाएगा a का वैल्यू और ये हो जाएगा b का वैल्यू। अब ये सारा वैल्यू आप यहाँ आइडेंटिटी में पुट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को क्या लिखोगे बताओगे, इस वाले क्वेश्चन को आप लिखोगे 100 + 3 और 98 को क्या लिखोगे 100 - 3। तो a का वैल्यू यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा मालूम है, x का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा x = हो जाएगा 100, a का वैल्यू हो जाएगा 3, b का वैल्यू हो जाएगा 2। यहाँ पे मैंने जो लिखा है ना यहाँ पे गलत लिख दिया, आपने बताया नहीं, तो मैं भी देख रहा था कि आप बताएंगे कि नहीं, यहाँ पे 3 नहीं होगा, कितना होगा 2 होगा 2, क्योंकि 100 में से 2 माइनस करोगे तभी 98 होगा। तो 100 - 2 98 हो गया ये, और 100 + 3 ये आपका 103 हो गया। तो इसको अब आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे आइडेंटिटी में, सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये आपका बचा ये जो लास्ट क्वेश्चन है 9.7 9.8, तो कैसे करोगे, है ना। चलिए आओ बताते हैं आपको ये कैसे करना है। 9.7 और 9.8 को आपको बताते हैं। तो दिस इज़ द पार्ट नंबर 4। 9.7 × 9.8। तो देखो आप 9.7 को क्या लिखोगे 9 + 0.7 और इसको लिखोगे 9 + 0.8। तो अब आप यहाँ हमें ये बताओ कि यहाँ पे जो तीनों वैल्यू हैं वो क्या हैं। x का वैल्यू कितना, जो ये सेम नंबर होता है वही x होता है, तो 9 हो गया। a का वैल्यू कितना 0.7 है ना, b का वैल्यू कितना जो लास्ट ब्रैकेट में लिखा रहता है 0.8। ये सारे वैल्यूज़ हो गए। अब ये वैल्यूज़ जब हो गए तो आप इसकी आइडेंटिटी तो आपको दे रखी है, याद करने की ज़रूरत अभी नहीं है। तो आपको दिया है x + a x + b = क्या हो जाएगा x² + a + b x + ab। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो। तो जब ये वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको मिलने वाला क्या है आंसर, x की जगह आप लिखोगे 9 का स्क्वायर
प्लस ए की जगह लिखोगे 0.7, बी की जगह लिखोगे 0.8 और ये हो जाएगा ब्रैकेट में x की जगह आप क्या लिखोगे 9, तो इंटू 9 कर लिया, प्लस यहाँ पे फिर से 0.7 इंटू 0.8। तो आप देखो क्या होगा, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81, प्लस 7 और 8 को प्लस करो तो 7 और 8 को प्लस करोगे तो 15 आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 डिजिट आपको डेसिमल भी लेना है तो 1 पॉइंट हो जाएगा, इंटू 9 और लास्ट वाले डिजिट में 7 8 को मल्टीप्लाई करो तो 56 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे डेसिमल डिजिट कितने हैं 2, तो यहाँ पे डेसिमल लगा के आपको 0 लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 डिजिट डेसिमल है ना, इसलिए। अब आपको इसको भी सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 81 तो सेम रहेगा और ये हो जाएगा 15 9 जा, पता है कितना होता है 135, और डेसिमल है तो आपने यहाँ पे 13 के बाद डेसिमल लगा दिया, और प्लस ये आपका क्या था 0 पॉइंट था ना, तो 0 पॉइंट आप यहाँ पे लिख देंगे 0.56। आई मीन सबको प्लस करना है, तो प्लस करना है तो प्लस करने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए, आप डायरेक्ट ना प्लस कर पाएँ, तो फटाफट आप रफ वर्क कर लीजिए। रफ वर्क करेंगे तो क्या है 81 होल नंबर है, ठीक है, और डेसिमल है नहीं तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 00, नो प्रॉब्लम, और 13 वो भी लिख दिया, पॉइंट कितना है 5 तो यहाँ पे लिख देंगे, और फिर 0 पॉइंट तो 0 होल नंबर है तो यहाँ पे लिखा, और 5 6 यहाँ पे लिख लिया। अब आप प्लस कर लो, तो प्लस करोगे यहाँ तो कुछ नंबर है नहीं तो आप इन क्रॉस लगा दीजिए, तो 0 और 6 कितना हुआ 6, 5 और 5 कितना हुआ 10, कैरी 1 हो गया ना, यहाँ पे कैरी 1 आ गया ये। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे 1 और 3 कितना 4 और कैरी 1 कितना होता है 5, और इधर 8 और 1 कितना हुआ 9, तो ये आपका यहाँ डेसिमल प्लेस कर दीजिए, तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ 95.06, और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। तो ये भी क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या करना है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 8, तो जिसमें आपने किया क्या था, इसको आपने लिखा 9 प्लस 0.7 और इसको क्या लिख लिया 9 प्लस 0.8, और इसके बाद आइडेंटिटी कर यूज कर ली, यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा 9, ठीक है, a का वैल्यू हो जाएगा 0.7, b का वैल्यू हो जाएगा 0.8। आइडेंटिटी तो सारा वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर फटाफट सभी के आ जाएंगे। तो मुझे लग रहा है ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो डियर तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।